Now let's start the exercise of chapter number 17. As usual, the first question is based on MCQ. The first question of MCQ is, banking sector constitute the correct answer is tertiary activity. Question number 2, the density of population in rural area is, the correct answer is low. ठीक है. Now question number 3, a linear pattern is formed. The correct answer is along a road or river. ठीक है. Now come to the question number 4. Metal roads are usually found in, the correct answer is urban area. शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा मिलते हैं metal road. Question number 5. Global communication is enabled through a network of computers worldwide known as, the correct answer is WWW, means World Wide Web. Okay. Now come to the question number 2. What is question number 2? It is true and false. Here you have to rewrite the incorrect statements to correct. Okay. The first question is, a settlement is defined as an unorganized group of human habitation where people reside. It is false. What is settlement? Settlement is defined as an organized group. Okay, यहाँ पर unorganized लिखा, वहाँ पर क्या हो जाएगा? Organized group of human habitation where people reside. Isn't it? Now come to the question number 2. The dispersed pattern of settlement usually develops around a water body. It is also false. The correct statement is to be there. The circular pattern of settlement usually develops around a water body. Disperse not. Here is to be circular pattern. हाँ, यहाँ पर इस पर बात का ध्यान रखना. Not disperse, circular pattern. Question number 3. Mining towns are located in areas which rich in mineral deposits. It is true. जहाँ माइनिंग होगा वहाँ पर मिनरल्स ऑब्वियसली होना ही चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4. द ट्रांस साइबेरियन रेलवे रन्स फ्रॉम St. Petersburg to Vladivostok. It is also true. It is in Russia. The telephone is means of mass communication. It is false. It is the means of personal communication, not mass communication. Okay. Now come to the question answer of one line question answer. You have to give the answer in one sentence. What is the first question? What is settlement? What is settlement? The correct answer is, a settlement is defined as an organized group of human habitation where people built their houses to live in. An organized group of human habitation. Settlement is not unorganized. It is an organized group of human habitation where people built their homes to live in. Okay. Question number 2. What is the basis for classifying settlements as rural and urban? क्या बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है सेटलमेंट्स ऑफ रूरल एंड अर्बन को? ठीक है. तो अभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हमने क्या लिखना है? The basis of classifying settlements as rural and urban is the main economic activity of the people of that area. How it is classifying? कैसे उसको क्लासीफाई करते हैं? रूरल और अर्बन एरियाज में उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग एरिया क्लासीफाई किया जाता है कि वो अर्बन एरिया है या रूरल एरिया. जहाँ अब अर्बन एरिया में क्या होगा? ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वगैरह वहाँ पर होंगे. रूरल एरिया में कौन सा काम ज़्यादा होता है? फिशिंग होगा या एग्रीकल्चर होगा, फार्मिंग होगा, ये सारे काम होंगे. तो वो इस तरह से क्लासीफाई किया जाता है अर्बन एरिया और रूरल एरियाज़ को. ओके. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3.
Name the 5 patterns of settlements. Very easy. What are the 5 patterns of settlements? That is linear, circular, dispersed, nucleated and radial. These are the 5 settlements. Okay. Name of the patterns of 5 settlement. Now come to the question number 4. What are the 4 major forms of transportation? Very easy. That is roadways, railways, waterways and airways. These are the 4 ways of transportation. And last one, who and in which year led the foundation of railway in India? किसने दिया था और कौन से ईयर में रेलवे का फाउंडेशन हुआ था? तो the foundation of railways in India was led by the Britishers in the year 1853. You don't forget it. 1853 the year, and it is its foundation done by the Britishers. Okay. Now come to the question number 4. Answer the following questions in brief. The first question is, enumerate the factors responsible for the choice of location and growth of a settlement. आपको वहाँ बताना है कि कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी सेटलमेंट के लोकेशंस के लिए या ग्रोथ सेटलमेंट के उसके ग्रोथ के लिए. हाँ, तो यहाँ कुछ फैक्टर्स हैं. द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चॉइस ऑफ लोकेशन and growth of a settlement are, first is topography of the region. Topography of the region means वहाँ की जो physical characteristics है उस एरिया की, जैसे कि वहाँ कैसा लैंड है, माउंटेन है, रिवर है, या बहुत सारी बातें होती हैं कि प्लेन्स है. हाँ, तो ये जो रीजन का है वो टोपोग्राफी भी उसके सेटलमेंट में बहुत मायने रखती है. कि डेजर्ट है, अब मान लें सेटलमेंट जहाँ तक नदियों के किनारे बहुत ज़्यादा सेटलमेंट होती है क्योंकि वहाँ का जो लोकेशन होता है उनके फेवरेबल होता है, एग्रीकल्चर के फेवरेबल होता है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. वाटर किस तरह से वहाँ पर अवेलेबल है वो बात डिपेंड करती है. फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी पर डिपेंड करता है. फिर फेवरेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट और ट्रेड पोटेंशियल. इन सारी बातें पर किसी भी जगह का सेटलमेंट निर्भर करता है. ठीक है. ट्रेड पोटेंशियल में क्या कि कौन से रास्ते को, कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ज़्यादा ईजियर होगा या फेवरेबल होगा कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपने ट्रेड को बढ़ा सके, व्यापार को बढ़ा सके. ठीक है. तो हमने देखा नदी घाटी के किनारे जो सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुई थी तो उसके पीछे कारण यही था कि वो वहाँ की ज़मीन फर्टाइल, वहाँ के ट्रेड के लिए वो बहुत फेवरेबल, क्लाइमेट अच्छी, तो बहुत सारे कारण होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ अ सेटलमेंट. ठीक है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स. रूरल सेटलमेंट्स के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना, तो वो भी बहुत ईजी है. The first point is characteristics of rural settlements are as follows. The first point is economy based on primary activities such as agriculture, fishing and livestock rearing. पशुपालन में, हाँ, खेती में, फिशिंग में, ये उनकी प्राइमरी ऑक्यूपेशन होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है, मुख्य धंधा होता है इनका. फिर लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन की जो डेंसिटी होती है वो कम होता है रूरल एरियाज़ में, बशर्ते कि अर्बन एरियाज़ में काफ़ी होते हैं. उसी तरह क्लाइमेट एंड लोकल एनवायरनमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. लोकल एनवायरनमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है रूरल एरियाज़ में. वेरीज इन साइज फ्रॉम अ सिंगल हाउस टू न्यूमरस विलेजेस. अब ये जो साइज़ है सिंगल हाउस टू न्यूमरस विलेजेस, इन पर ये वेरी करता है. कहीं 2 मकान भी हो सकते हैं, किसी विलेज में कई सारे हो सकते हैं ना. फिर लास्ट पॉइंट इज लिमिटेड फैसिलिटीज सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन सेंटर्स एंड मार्केट्स. इनकी फैसिलिटी जो होती है वो लिमिटेड नहीं होती है. ये नहीं कि वहाँ पर आपको मॉल मिल जाएगा, हाई क्लास हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, ऐसा रूरल एरियाज़ में नहीं आता है. इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर लिमिटेड फैसिलिटीज़ है सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन सेंटर्स,
and markets. Okay. Now come to the question number 3. What is meant by rural-urban dependence? What is meant by rural-urban dependence? उसका मतलब क्या होता है? Rural-urban dependence means that a complementary relationship exists between villages, cities, wherein both benefit each other. मीन्स यहाँ पर एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं. विलेजेस के बिना अर्बन सेक्टर्स का जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं उनका पूरा नहीं हो सकता है, और या जो अर्बन एरिया में जो रहते हैं या रूरल एरिया में रहते हैं वो अर्बन एरियाज़ के बिना उनके काम पूरे नहीं हो सकते. विलेजेस सप्लाई फूड ग्रेन्स, इंडस्ट्रियल्स एंड एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स एंड लेबर फोर्स टू सिटी एंड टाउन. ये तो हो गई रूरल एरिया की बात. हाँ, अब द टाउन्स एंड सिटीज सप्लाई इंडस्ट्रियल गुड, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द रूरल पीपल. तो ये कच्चे माल देते हैं रूरल एरियाज़ वाले, और उस माल को तैयार करके टाउन्स में जो अर्बन एरियाज़ है वो सप्लाई करते हैं रूरल एरियाज़ में. ठीक है. और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है या एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, ये भी कहाँ में मिलता है? अर्बन एरियाज़ में. इस तरह जो है कि जो रूरल है अर्बन एरियाज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. क्वेश्चन नंबर 4. Enumerate the advantages of road transport. क्या लाभ है इसका रोड ट्रांसपोर्ट का? तो यहाँ पर बताएगा. The advantage of road transport as follows. It can lead in all kinds of terrain including mountain, hilly and desert regions. सभी जगह पे ये जो है रोड ट्रांसपोर्ट कैन रीच. प्रोवाइड्स अ डोर टू डोर फ्लेक्सिबिलिटी. डोर टू डोर पहुँचा. एयरवेज है या रेल ट्रांसपोर्ट है, ये जो सारे हैं वो डोर टू डोर नहीं आपको पहुँचा सकते, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट है, इट प्रोवाइड्स द डोर टू डोर फैसिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी. एक्ट्स एज अ फीडर टू ऑल अदर काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. और ये इस तरह से दूसरे हैं उनके लिए फीडर का काम करता है ये रोड ट्रांसपोर्ट. मॉडर्न हाईवेज एड इन फास्ट मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक इन बोथ डायरेक्शन. जो मॉडर्न हाईवेज हैं फास्ट मूवमेंट ट्रैफिक का होता है, बोथ डायरेक्शंस में होता है, जिससे फास्ट वॉक भी संपन्न होता है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. हाउ आर एयरवेज बेटर देन द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? कैसे बेटर है अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? अभी मैंने जैसे बताया कि ये दूसरे ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उसको भी फीडर का काम करता है उसके लिए. एयरवेज आर बेटर देन द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकॉज बिसाइड ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड फ्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, helicopters and choppers are of great help during natural calamities such as earthquake and floods. यहाँ पर आप देखो कि एयरवेज एक बेटर ट्रांसपोर्ट है. कारण क्या उसके? वो पीपल को और फिर जो माल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंचाता है. लेकिन समटाइम्स बहुत डिज़ास्टर, अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है, तो उस समय हेलीकॉप्टर और या चॉपर्स जो हैं वो बहुत हेल्प करते हैं. वो वहाँ रिमोट एरिया तक पहुंचकर लोगों को बचाने का काम करते हैं. जहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट वर्क नहीं कर सकता है या रेल ट्रांसपोर्ट वर्क नहीं करता है, तो वहाँ पर एयरवेज ही हेल्प करते हैं. एयरवेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर डिफेंस पर्पसेस. डिफेंस पर्पसेस इनका बहुत महत्व है. हाँ, अभी देखो राफेल हमारे यहाँ पर आया है. डिफेंस को अपने रक्षा जो है दूसरे देशों से अपने को मजबूत करने के लिए राफेल जो थे एयरवेज से किस तरह से फास्ट जो है हम यदि कोई आक्रमण होता है या इन्वेट्स होता है या कोई डिफ़िकल्टीज आती तो उस एयरवेज में उनका वर्क फास्ट होता है एयरवेज के थ्रू. ठीक है. नेक्स्ट है एंड इट टेक्स लेसर टाइम टू ट्रेवल बाय एयर देन ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. और सबसे ईजी
ये सबसे कम टाइम लेता है अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एक जगह से दूसरी जगह इजीली पहुंच सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन डिटेल। इसमें आंसर इन डिटेल में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 5 काइंड्स ऑफ सेटलमेंट पैटर्न्स अलॉन्ग विद डायग्राम्स। अब ये जो 5 काइंड सेटलमेंट्स है डायग्राम के साथ आपको बताना है, जो है कौन कौन से है, लीनियर है, सर्कुलर है, डिस्पर्स्ड है, न्यूक्लिएटेड है, रेडियल है। ये चारों सेटलमेंट को आपको डायग्राम के थ्रू शो करना है। तो आप कैसे करोगे, यहाँ तो आपके आंसर की में नहीं दे रखा डायग्राम, लेकिन आपको बुक में डायग्राम जरूर बनाना है, ठीक है। तो आंसर देखते हैं। 5 काइंड्स ऑफ सेटलमेंट पैटर्न्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट, लीनियर सेटलमेंट, या आप लीनियर का आपको पिक्चर्स बनाना है। डेवलप इन elongated and narrow form along a linear feature such as river, road, railway track, canal or coastline. फिर सर्कुलर सेटलमेंट, डेवलप इन अ सर्कुलर शेप अराउंड अ वाटर बॉडी. थर्ड है डिस्पर्स्ड या scattered settlement, consist of isolated dwelling or a few cluster of houses scattered over a large area and commonly found in forest. ये डिस्पर्स या scattered settlement जो सेटलमेंट्स है वो फॉरेस्ट एरियाज में मिलेंगे. सबसे सेकेंड लास्ट इज न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आर कॉम्पैक्ट एंड agglomerated settlements with dwelling close to each other and narrow winding streets between them. Radial settlements, some come up along roads and lanes which diverge in all direction from a central point. अब यहाँ पर ये सारे ये जो जितने 5 तरह के जो सेटलमेंट्स है, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, उसके बारे में आपको पहले लिखना है और साथ साथ पिक्चर भी ड्रॉ करते जाना है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. यू हैव टू राइट हियर इन शॉर्ट नोट 5 टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स, है ना. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 5 टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट. तो first is administrative towns are centers of administration and governance. ठीक है. न्यू दिल्ली, वाशिंगटन DC, मैड्रिड, बीजिंग एंड बेलगारू are the national and state capitals. Administrative towns are centers of administration and governance. ठीक है. Next point is market or trading towns developed as the centers of buying and selling and for destruction of agriculture, industrial produce. Example, Winnipeg and Kabul. Next is cultural and educational centers are known for their cultural significance and promotion of art, culture, education. Example, Shantiniketan, Cambridge and Heidelberg. Second last, religious towns develop around religious shrines or places of pilgrimage. Example, Varanasi, Jerusalem and Lhasa. Religious town कहाँ पर होता है? फिर उसके बाद residential town refer to the suburbs and small towns which serve as the residence of large population. Example, चंडीगढ़ and Salt Lake City. तो इस तरह से जो मार्केट टाइप्स ऑफ जो टाउन है, ये 5 तरह के मार्केट टाउन, कल्चरल टाउन, रिलीजियस टाउन, रेसिडेंशियल टाउन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स. ठीक है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. What are waterways? Write 2 lines each on the different type of waterways. Give an example where necessary. Waterways क्या है और उसके example, 2 लाइन लिखकर उनके example देने हैं. तो waterways जो वाटर पे चलने वाले modes of communication है.
Waterways are the modes of communication go over the underwater, which include huge ships, ocean liners, oil tankers, trawlers या फिशिंग करने वाली जो बोट होती है उसको ट्रॉलर्स बोलते हैं, बोट्स, फेरीज, सबमरीन्स एंड सो ऑन. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटरवेज क्या है? नेविगेबल रिवर्स, लेक्स एंड कैनल्स आर इनलैंड वाटरवेज. ठीक है, जो रिवर्स है, लेक्स है, कैनल्स है, वो इनलैंड वाटरवेज, मतलब जो लैंड से लैंड को मिलाने वाले वाटरवेज है. ऑन विच कार्गो एंड पैसेंजर्स आर ट्रांसपोर्टेड, जिस पर कार्गो और पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट होते हैं. फिर मैकेनाइज्ड बोट्स एंड steamers are often used. Important inland waterways of the world are Mississippi, Missouri, Danube, Volga, Yangtze, Rhine, Kiang, St. Lawrence River, Seaway, Great Lakes waterways, Rhone, Rhine Canal, Suez Canal, Panama Canal, and so on. These are the inland water ways. One of the cheaper forms of transport across. Another types of water transport is ocean transport. It is the cheapest forms of transport across continent. This includes ships that carry large loads. Some ocean routes are North Atlantic route, Mediterranean Suez Indian route, Panama Canal route एंड नॉर्थ पैसिफिक रूट. मीन्स आपके समुद्र में भी, ओशन में भी रूट्स है. किस तरह से ये ओशियन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होते हैं और किस तरह इनलैंड वाटरवेज इज़ द अनदर वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. What is question number 4? 4 is distinguish between personal communication and mass communication. इन दोनों के बीच में आपको अंतर बताना है. क्या है पर्सनल कम्युनिकेशन? पर्सनल कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन 2 or more people. ठीक है, जैसे टेलीफोन में बात करते हैं तो 2 or more people को हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. लेकिन मास कम्युनिकेशन reaches a large number of people at the same time. ठीक. Second point of personal communication, telephones, emails, fax or cellular mobile phones are means of personal communication, but radio, TV, newspaper, magazines are the means of mass communication. Next is, it is personal communication, it is very comparatively slower way of disseminating information than mass communication. मतलब स्प्रेड होता है कोई भी न्यूज़ का बहुत ही स्लोई, but it is the faster way of disseminating information to a large number of people at the same time. Okay, तो इस तरह से पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन के बीच का में अंतर बताया गया. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कौन कौन से मीन्स आते हैं कम्युनिकेशन को, जिसको पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं और किसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं, या किस कम्युनिकेशन में वेरी स्लोली डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन होता है और किससे फास्ट होता है, जो वे ऑफ डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन इन फास्टर वे. तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन. नाउ द 5th क्वेश्चन इज, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सैटेलाइट. सैटेलाइट पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है. आजकल सैटेलाइट से हमारा वर्क कितना इजी हो गया है ना. द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ aided the launch of artificial satellites into space so as to facilitate instantaneous global communications. आज हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में तुरंत में बात कर सकते हैं, तुरंत उनके फेस टू फेस बात हो सकते हैं. दिस इज़ ओनली थ्रू द सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट. This satellites encircle the earth and beam down information.
whether it is news, educational information, climate and weather data or any other earth related. Well, due to this satellite, radio and television programs reach all corners of the world, leading to dissemination of vital information. Next, these communication satellites also enable global communication through a network of computers worldwide known as World Wide Web and the इंटरनेट. तो इस तरह से ये जो सैटेलाइट्स है जो ग्लोबल कम्युनिकेशन की का एक नेटवर्क तैयार करती है. हम इजीली कहीं भी आसानी से बात कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं. ओके, तो ये जो सैटेलाइट है उसका बहुत ज़्यादा महत्व आज के दौरान बढ़ गया है. ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नॉट नेचुरल सैटेलाइट. व्हाट इज़ द नेचुरल सैटेलाइट? दैट इज़ मून. ओके. Okay students, the question answer portion of the chapter is over. Your duty to write the question answer in your fair notebook and write the word meaning in your CW. Okay, thank you students, bye bye and take care.